Hello students, my name is Professor Madhu Salvi and today we are going to learn the mathematical logic, which is the first chapter of the mathematics 1. So I hope you all are doing good during this time. Be at home, stay at home, learn at home. So we are starting the mathematical logic chapter today. So basically, what is a mathematical logic? So mathematics is a logical subject. By logical it means a reason. There should be a reason for a statement. It helps in understanding the meaning of the statement and its truthness. Like for example, if the statement is truth or a false. So we come to know in the mathematical logic. So why mathematical logic is useful? It improves in the method of reasoning, answering abilities in programming and complex systems. So many a times students comes and ask me, sir, मैथमेटिकल लॉजिक फ्यूचर में हम सर कहाँ यूज़ करेंगे? तो उनको बोलेंगे कि बेटा ये आपके रीजनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेगा और जब भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स या कोई भी प्रोग्रामिंग करेंगे सो उसके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है. So this chapter is very easy, very scoring. So we have divided this chapter in types. So उससे आपको बच्चा easy भी हो जाएगा पढ़ाई करने के लिए. Okay, so we'll move on to type 1 and type 2 for the current video, current lecture basically. So in the type 1 we are going to study about the statements and its truth values. So beta, statement and its truth value. So what is a statement? A statement is a declarative sentence which is either true or false, but not both simultaneously. It is denoted by P, Q, R, S and so forth in mathematical logic. So for example, we say a statement like he is honest. So we cannot decide whether it is a true or a false. Okay, so let's move on to a next thing. What are the different types of statements? First thing is an open sentence. In open sentence, we cannot decide whether the sentence is truth or a false. So for example, I would like to say he is honest. So we cannot decide that who is honest, right? So there is no outcome that is true or a false. Next thing is the simple statement. In simple statement, a statement which cannot be subdivided into or more statements is called as a simple statement. So for example, 3 and 5 are twin primes. So we cannot subdivide this statement further. Next thing is a compound statement. This is one of the most important statement which we are going to use in the further lectures as well. So if two or more simple statements are combined using logical connectives. Now beta, what are the logical connectives? We'll go in detail in the coming sessions. So as of now, we will look here as a negation, and or amplification. Double amplification is called as a compound statement. Example, 3 is a prime number and 4 is an even number. So here AND is called as the logical connective. So we have combined the statement 1 and statement 2 by using the logical connective. So it is called as the compound statement. Next type of statement is the imperative statement. So it consists of a command or a request. So this is the best nice example, like when the students don't do their homework, I usually say the statement get out of my class, right? So this kind of statement is called as an imperative statement. Shut the door. Next type is the exclamatory sentence. It makes a statement that convey a strong emotion or a feeling, like thank you Sheldon. It is also denoted by the exclamation mark. Interrogative sentences. A statement which asks questions like do you need fruits? Have you done your homework? Many a times people say no, but this is called as an interrogative sentence. The main thing, note, imperative statements, exclamatory sentence, interrogative and open statements are not
called sentences. I repeat, interrogative, imperative, exclamatory and open statements are not called sentences. Clear? So अगर उसमें से तुमको पहचानने को आया कि भाई ये चार आगे आ गए मेरे स्टेटमेंट, तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे भाई ये सेंटेंस नहीं है, उसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं हो सकती है. Okay, next, truth value of the statements. So as we have seen earlier, every statement must be either true or false. It cannot be both. Okay, so उसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा बेटा? ट्रूथ वैल्यू रहेगा, अगर स्टेटमेंट मेरा ट्रू है तो उसको डिनोट करेंगे कैपिटल टी के साथ, अगर वो फॉल्स है तो उसको डिनोट करेंगे एफ के साथ. नोट, टी इज यूज्ड एज 1 and f is used as 0 for input and output table. We will discuss it at the later stage in the coming sessions. So now example, there is no prime number between 23 and 29. So बेटा ये ट्रू है कि फॉल्स है, अपने को गेस करना है. पहले तो ये एक स्टेटमेंट है, देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन 23 एंड 29. ओके, सो बेटा ये सच है कि नहीं, कैसे पता करोगे? तो बेटा प्राइम नंबर 23 और 29 के बीच में नंबर्स कौन से 24, 25, 26, 27 एंड 28. ये सारे मेरे कंपोजिट नंबर है, राइट? सो इसके लिए इसका आंसर है ट्रू. इसलिए हमने नोट किया है इसको टी के साथ, विच मीन्स इट इज अ ट्रूथ स्टेटमेंट. नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नेगेटिव. जब भी हम स्क्वायर लेंगे नेगेटिव नंबर का भी, जब भी हम स्क्वायर लेते हैं बेटा वो पॉजिटिव हो जाता है. तो इसके लिए ये है मेरा फॉल्स. ठीक है, तो अभी तक क्लियर हो गया व्हाट आर माय स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या होता है बेटा? इसकी वैल्यू मेरे को ट्रू या फॉल्स आनी चाहिए. ओके, दोनों नहीं चलेगा. और कौन से स्टेटमेंट्स को हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये सेंटेंस नहीं है? इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव एंड ओपन स्टेटमेंट्स. अगर वो आया तो उसको हम बोलेंगे कि इट इज़ नॉट अ सेंटेंस. अगर वो स्टेटमेंट है और मुझे उसकी ट्रूथ वैल्यू गैस करनी है तो हम कैसे करेंगे? उसे देखेंगे, चेक करेंगे कि पहले ये स्टेटमेंट है या नहीं. अगर ये स्टेटमेंट है तो उसका एक्चुअली आउटपुट क्या आता है. अगर उसका आउटपुट ट्रू आता है तो ट्रू लिखेंगे, फॉल्स है तो फॉल्स लिखेंगे, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था ट्रूथ वैल्यू के. क्लियर है बेटा इधर तक? चलिए, सो अभी हम लोग ना एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्या बोला गया बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी टेक्स्ट बुक्स मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है, सो देयर आर मेनी PDF भी अवेलेबल है ऑनलाइन. सो उसमें से मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स जस्टिफाई इन केस द स्टेटमेंट इज अ ट्रूथ वैल्यू. और अपने को बेटा डिसाइड भी करना है कि ये ट्रूथ वैल्यू है या नहीं है. चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बेटा? 5 + 4 = 13. बेटा ये एक स्टेट, इट इज अ सेंटेंस. इसकी ट्रूथ वैल्यू बेटा पॉसिबल है या नहीं है? बेटा पॉसिबल है. आइदर ये ट्रू हो सकता है या तो फिर ये फॉल्स हो सकता है. मतलब ये एक स्टेटमेंट भी हो गया. ओके, अभी मुझे बताओ बेटा 5 + 4 = 13. कभी सुना है बेटा 5 + 4 = 13 होता है? नहीं होता है, राइट? तो बेटा 5 + 4 = 9 होता है. तो इसलिए ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा इसका? फॉल्स. सो 5 + 4 = 9. That is the statement is false. ऐसे बहुत सारे बेटा एग्जाम्पल्स है टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएंगे. तो पहले उसको एक बार देखना है कि वो स्टेटमेंट है या नहीं. अगर वो नहीं है तो अपने को लिखने का इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट. तो अगर नॉट अ स्टेटमेंट है तो उसकी कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं आएगी. अगर वो स्टेटमेंट है तो ही उसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी. तो ये पार्ट क्लियर हो गया बेटा स्टेटमेंट्स एंड ट्रूथ वैल्यू का. ठीक है, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन अभी मैं जो ले रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. टाइप 2. टाइप 2 में क्या बोलते हैं बेटा हम लोग कि व्हाट आर इट्स लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड ट्रूथ टेबल. बेटा अभी आपने आगे देखा था कि लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है कि वर्ड्स लाइक एंड और नॉट, इफ देन, if and only if can be used to combine two simple statements. अगर मेरे पास and है
और है, नॉट है, इफ है, देन है, इफ एंड ओनली इफ है। तो जब भी मैं ये कंबाइन करूँगा ये वर्ड्स को लेके और कोई सेंटेंस बनेगा तो उसे बोलेंगे स्टेटमेंट, एंड द अबाउ थिंग्स आर कॉल्ड एज द लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो आइए बेटा एक बार देख लेते हैं कि लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने सारे होते हैं। बेटा मैथमेटिकल लॉजिक में हम लोग सिर्फ 5 ही पढ़ेंगे अभी के लिए, दैट इज लॉजिकल कनेक्टिव। उसमें क्या है, फर्स्ट इज एंड, उसका सिंबल है ये वाला, उसका सिंबल है, उसको हम लोग उल्टा वी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज और में उसको सिंबल है ये, उसको वी बोल सकते हैं। नॉट मतलब एक साइन रहेगी उसकी। इफ देन, अगर ये हुआ तो ही ये होगा, ऐसा कुछ होता है। तो इफ एंड देन अगर क्वेश्चन में है तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे एरो के साथ। इफ एंड ओनली इफ रहेगा तो उसे डबल एरो साइड से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा ये तो हो गई लॉजिकल कनेक्टिव्स की बात। अभी हम लोग करते हैं व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू। बेटा ट्रूथ वैल्यू कैसे मिलेगा अपने को, कि डिटरमाइन करेंगे कि स्टेटमेंट अगर मेरा ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रूथ है तो यूजिंग दी लॉजिकल कनेक्टिव्स के साथ हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर क्या आता है। सो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हमको 2 चीज चाहिए। पहले तो बेटा फर्स्ट थिंग वी नीड द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे क्वेश्चन में कितनी स्टेटमेंट्स है मेरे को वो चाहिए, एंड नंबर ऑफ रोज। ओके, तो नंबर ऑफ रोज इज डिनोटेड बाय 2n। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 2 स्टेटमेंट है तो रोज कितनी रहेगी बेटा, 2 कितना होता है बेटा 4। तो मेरे को 4 उसकी रोज मिलेंगे। आइए उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर मान लो कि मेरे पास एक ही स्टेटमेंट है। ओके, जैसे अपने आगे देखा था कि स्टेटमेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, पी के साथ, क्यू के साथ, आर के साथ। अभी के लिए हम लोग 3 तक ही जाते हैं, लेटर ऑन अगर नीड हुई तो हम लोग चौथा भी इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो बेटा अगर मेरे पास एक ही स्टेटमेंट है मेरे क्वेश्चन में प्रेजेंट तो उसको मैं डिनोट करूंगा पी। ओके, तो उसका ट्रूथ टेबल में क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। अभी बेटा 11th में आपने प्रोबेबिलिटी तो पढ़ी होगी, तो सेम कंसेप्ट है अपन यहाँ पे लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें था कि अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो उसमें था बेटा आइदर हेड्स और टेल्स। तो हेड्स की जगह पे इधर ट्रू है, टेल्स की जगह पे यहाँ पे फॉल्स है। ये एक डिफरेंस है। नेक्स्ट थिंग, अगर मेरे पास 2 स्टेटमेंट्स हुई, फॉर एग्जाम्पल पी एंड क्यू, तो बेटा उसका ट्रूथ टेबल कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। पी एंड क्यू लिखा मैंने, ओके, तो क्यू में टी एफ लिखेंगे, पी में 2T 2F लिखेंगे। ओके, TF 2T 2F, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो इसमें था कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर 3 स्टेटमेंट है तो उसकी वैल्यूज क्या आएगी बेटा मेरी, P Q एंड R है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हमेशा जो भी लास्ट कॉलम रहता है ना उसमें हम लोग T F करके 8 टाइम्स लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट Q है तो 2T 2F, राइट। अगर P है तो उसमें 4T 4F। बेटा ये 8 ही वैल्यूज क्यों आए यहाँ पे बेटा, बिकॉज मेरे पास 3 स्टेटमेंट थी। अपने पास बेटा फॉर्मूला तो है 2⁻3, मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसके लिए मेरे को बेटा 8 रोज आए, मतलब TF। सिमिलरली क्यू रहेगा 2T 2F। अगर 3 P में रहेगा तो 4 बार T 4 बार F। याद रखना, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट में। अगर एक स्टेटमेंट रहेगा तो मेरे पास सिर्फ 2 रो रहेगी, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स। अगर मेरे पास 2 स्टेटमेंट है तो क्या आएगा बेटा मेरा, P एंड Q है तो 2T 2F और Q में TF। अगर 3 स्टेटमेंट है तो क्या आएगा बेटा मेरा, 3 रोज बनेंगे, 3 कॉलम्स बनेंगे P Q R, और सिमिलरली 8 रोज बनेगी जो अपने पास फॉर्मूला में है वो, ठीक है। ये क्लियर हो गए हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। बेटा ये जो टेबल है ना बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रूथ टेबल फॉर लॉजिकल कनेक्टिव्स। तुम लोग उसको 12th में मानो या JEE में मानो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मानो, दिस टेबल यू शुड ऑल नो बाय हार्ट, ठीक है। चलिए आइए उसको देखते हैं। इसमें बेसिकली क्या आता है, जो भी हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स देखा है, ओके, तो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी ना,
वो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे इस वीडियो में, इस लेक्चर में। ओके चलिए, फर्स्ट कनेक्टिव क्या रहेगा बेटा, ध्यान से देखिएगा बेटा। फर्स्ट इज माय नेगेशन। ओके, कनेक्टिव इज नेगेशन। उसका सिंबल क्या है बेटा, ये वाला सिंबल है। तो उसमें नोट क्या लिया, स्टेटमेंट का उल्टा लिखने का, हाँ है तो ना एंड वाइस वर्सा। ओके, हाँ है तो ना मतलब क्या, अगर मैंने बोला कि शुभम इज ईटिंग चॉकलेट, तो क्या लिखेंगे इसका नेगेशन, शुभम इज नॉट ईटिंग अ चॉकलेट। ओके, आइए ट्रुथ टेबल देख लेते हैं उसका। P है तो एक ही स्टेटमेंट था तो P, और ये नेगेशन P, तो ये T है रहेगा तो उसका F हो जाएगा, अगर ये F रहेगा तो उसका T हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज कंजंक्शन। बेटा कंजंक्शन मतलब क्या, एंड, उल्टा एंड, ठीक है, एंड मतलब उल्टा V। ओके, सो इसमें क्या होता है कि एक तरीका है याद रखने के लिए, ये टेबल जो भी है ना ट्रुथ टेबल बेटा, उसको तो कैसे याद रखेंगे उसको, देखो दो स्टेटमेंट आएंगे, एंड मतलब दो स्टेटमेंट P Q आएगा, और उसको डिनोट करते हैं हम लोग उल्टे V के साथ, तो ये गया P एंड Q। ओके, सो अभी इसमें क्या होता है, अगर T एंड T ओनली देन T अदरवाइज फॉल्स, मतलब अगर दोनों स्टेटमेंट मेरे ट्रू है तो ही वो ट्रू आएगा, वरना हमारे बाकी सारे मेरे फॉल्स आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब और, V जैसे ऊपर देखा था हमने, दो T है तो ही T होता था, तो डिसजंक्शन में क्या बोलेंगे बेटा, दो F है तो ही वो F, एल्स T। तो देख लो बेटा, जहां जहां दो F है वहां वहां F लगाने का, बाकी सारे में T लगाने का। फोर्थ थिंग इज इम्प्लीफिकेशन, दैट इज कंडीशन। बोले थे हम लोगों ने इफ देन। इफ देन मतलब क्या आएगा इसमें, TF देन F एल्स T, याद रखने का बेटा ये TF देन F, मतलब एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ही मेरे को फॉल्स आएगा, बाकी सारे को मैं T लिखूंगा। तो इसमें क्या आएगा बेटा, देखो TF है तो उसका आंसर F आएगा, बाकी सारे मेरे को T लिखने के। इसमें नोट है बेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट्स में भी काम आ सकता है। P इज कॉल्ड एज एंटासीडेंट और हाइपोथेसिस। Q इज कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन। कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं बेटा कि P इज द एंसिडेंट एंड Q इज द कॉन्सिक्वेंट, तो व्हाट इज द ट्रुथ टेबल, तो TF रहेगा तो F लिखने का, बाकी सारे एल्स उसको T चिपका देने का। नेक्स्ट और द लास्ट है ये डबल इम्प्लीफिकेशन। बेटा डबल इम्प्लीफिकेशन में क्या आएगा, इसको क्या बोलते हैं, बाय कंडीशनल। बाय कंडीशन मतलब याद रखने का बेटा, दो, डबल मतलब दो, बाय मतलब भी दो होता है। तो बेटा ये इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग, अगर बोथ सेम है तो उसका आंसर T। ओके, सेम ट्रूथ वैल्यू रहेगा मतलब T। ओके, सेम ट्रूथ वैल्यू रहेगा तो वो T आ जाएगा। देखते हैं, चलिए ये दो T है तो उसका आंसर T, ये TF है तो फॉल्स, ये भी फॉल्स, दो F आ गया तो ये T हो गया। तो चलिए आइए एक बार इसको हम लोग रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं बेटा कि कैसे होता है। ओके बेटा, इसको बोलते हैं कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स पहला हमने देखा था बेटा नेगेशन। नेगेशन देखा था बेटा। नेगेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मेरे को एक स्टेटमेंट है तो उसको डिनोट करूंगा मैं इसके साथ, नेगेशन के साथ। ओके, सो मान लीजिए मेरे पास P है, उसका नेगेशन आ गया, ये P आ गया। ओके, अगर P की ट्रूथ वैल्यू T है तो नेगेशन उसका फॉल्स हो जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड हमने देखा था बेटा कंजंक्शन। कंजंक्शन को डिनोट कैसे किया था बेटा मैंने, ये सिंबल से, और उसको क्या बोल सकते हैं, एंड। ओके, अभी कंजंक्शन में दो स्टेटमेंट था तो देखेंगे बेटा, P लेंगे Q लेंगे, P एंड Q ऐसे बोलेंगे उसको, P एंड Q। ओके, वापिस एक बार, P एंड Q। ओके, तो चलिए, तो पहले TF दो स्टेटमेंट थी, इसके लिए 4 रोज बनेंगे बेटा, TTFF। अच्छा, कंजंक्शन में क्या देखा था बेटा हम लोग ने कि अगर बोथ द ऑप्शंस आर T तो ही वो T रहेगा, और एल्स वो फॉल्स हो जाएगा। तो T एंड T रहेगा तो T, बाकी सारे फंक्शनैलिटी मेरे फॉल्स।
नेक्स्ट थिंग देखते हैं हम लोग डिसजंक्शन। डिसजंक्शन उसको बोलेंगे बेटा और। ओके, तो P है रह गया ये Q, P और Q। ओके, तो ये TF TF TT FF। अभी और ऑपरेटर के लिए क्या था बेटा, अगर मेरे को दोनों फॉल्स है तो ही वो फॉल्स। ठीक है बेटा, तो दोनों फॉल्स है तो वो आएगा फॉल्स, बाकी सारे मेरे T। सिंपल है बेटा। चलिए, फोर्थ था इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन उसको कैसे डिनोट कर देते बेटा, ये सिंबल्स से। ओके, चलिए आइए, P Q, P एंड Q था, TT FF T। ओके, तो देखेंगे TT FF। तो इसमें क्या था बेटा, TF रहेगा तो ही वो F आएगा, TF रहेगा तो ही वो F आएगा। जो TF तो फॉल्स, बाकी सारे मेरे ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, और एक टाइप देखा था हमने, वो क्या था, लास्ट टाइप जो था वो डबल इम्प्लीफिकेशन था। आइए, डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन को डिनोट कैसे किया था बेटा, दो एरो से, टू साइडेड एरो। ठीक है, चलिए, तो ये P हो गया, ये Q हो गया। P डबल इम्प्लाइज Q, क्या बोलेंगे बेटा, P डबल इम्प्लाइज Q। ओके, तो इसमें हो गया, चलो TT FF TF TF। इसमें मैंने बोला बेटा बाय मतलब दोनों, मतलब दोनों अगर सेम है, दोनों सेम है तो वो ट्रू और एल्स फॉल्स। तो भाई TT है तो मैं यहाँ पे TFF है तो भी ये T, बाकी सारे मेरे फॉल्स। आई होप ये क्लियर रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए और एक बार स्लोली फटाफट से रिवाइज करवा देते हैं। नेगेशन रहेगा तो क्या आएगा, अगर PT रहेगा तो F हो जाएगा, F होगा तो T हो जाएगा। कंजंक्शन मतलब बेटा एंड हो गया। एंड में क्या कंसेप्ट था मेरा, दो अगर T है तो ही वो T आएगा, एल्स वो फॉल्स आ जाएगा। तो देखो, दो T है तो ही T, एल्स वो सारे मेरे फॉल्स आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट थिंग इज डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या आएगा बेटा, और मतलब दोनों F रहेगा तो ही वो F आएगा, एल्स क्या आएगा बेटा, वो T आएगा। दोनों F है तो वो F है, करेक्ट है, बाकी सारे को T दे दिए। इम्प्लीकेशन या कंडीशनल बोलेंगे, सिंगल कंडीशन है, ठीक है। इफ देन डिनोट करेंगे एरो के साथ, तो क्या है ये TF देन F एल्स T। तो ले लीजिए बेटा TF है, तो ले लीजिए TF है तो वो हो गया मेरा T। ओके, ओ इधर TF है तो वो हो गया F, बाकी सारे मेरे हो गए T। क्लियर है बेटा। ओके, नेक्स्ट डबल इम्प्लीफिकेशन में क्या आएगा बेटा, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ मतलब अगर बोथ कंडीशन सेम हुई मेरी तभी जाके उसका आंसर मेरे को ट्रू मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये TT है तो ये T आ गया, TF है नहीं फॉल्स, FT है नहीं फॉल्स, FF दोनों सेम मतलब T। आई होप ये ट्रूथ टेबल क्लियर रहेगा। नेक्स्ट थिंग, अभी आइए नोट देख लेते हैं। ठीक है, तो नोट में क्या होता है बेटा कि इक्विवेलेंस फॉर्म ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट, उसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं या कैसे पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो पहला है बेटा P इज सफिशिएंट फॉर Q, Q इज नेसेसरी फॉर P, P implies Q, Q implies P, या Q follows from P। ये डिफरेंट टाइप्स है जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं इम्प्लीफिकेशन के लिए। नेक्स्ट बेटा बहुत ही रामबाण है, नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट। मतलब क्या, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है उसको मैं नेगेशन करता हूँ तो वो ट्रू हो जाएगा, करेक्ट। ऐसे ही देखिए, अगर कोई स्टेटमेंट नेगेशन P है, उसका नेगेशन किया तो मैं P आ गया। मतलब नेगेशन ऑफ अ नेगेशन इज अ स्टेटमेंट। मतलब अगर तुम एक झूठ बोल रहे हो, उसको झूठ कवर करने के लिए और एक झूठ बोल रहे हो बेटा, तो वो झूठ ही हुआ ना। एग्जाम्पल, मैंने होमवर्क नहीं किया, तुम बोलोगे सर बुक घर पे रह गई,
एट दी एंड तो तुमने होमवर्क नहीं किया, ये ऐसा एक एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग। तो आई होप ये क्लियर। अगर ये तुमने पढ़ लिया रहेगा सो ये पूरे मेरे एक्सरसाइज नंबर 1.1 मेरी यहाँ पे कवर हो चुकी है। सो इन द फॉलोइंग लेक्चर्स मैं एक्सरसाइज भी सॉल्व करूँगा इसके ऊपर, एंड ये जो भी मैंने केस स्टडी है या टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है मैं उसको अपने ग्रुप में डाल दूँगा। सो और कोई भी डाउट्स रहेगा सो ग्रुप पे पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। सो उस वी विल सॉल्व इट। और बेटा होमवर्क के लिए एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके लाना है। और बेटा वो टेबल जो बेटा मैंने बताया था, ये लॉजिकल टेबल, वो तुमको एक बार लिख के इसको याद करके लाना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।